اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ توبہ ہے بھائی، ہما کی ساس نے تو لگتا ہے تنزیہ بات میں PhD کر رکھی ہے۔ 15 منٹ کے لیے ان کے پاس بیٹھی تھی اور انہوں نے ان 15 منٹوں میں ذو معنی فکروں اور تنزیہ باتوں کے سوا کوئی سیدھی بات نہ کی۔ ہمت ہے ہما کی جو ایسی ٹیڑھی ساس کو برداشت کیے جا رہی ہے۔ تارا آپی نے ہما کے کمرے میں آ کر ہما کی برداشت کو سلام پیش کیا۔ ہما کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ عام شادی شدہ عورتوں کی طرح سسرال والوں کی برائیاں میکے میں کرنے کی عادی نہ تھی۔ یہ سبق اس کی مرحومہ ماں نے پڑھایا تھا۔ وہ کہتی تھی شوہر اور شوہر کے گھر والوں کی ادھر ادھر برائیاں کرنے سے عورت صرف اپنا بھرم کھوتی ہے۔ لوگ یا تو ترس کھاتے ہیں یا پھر چسکے لے کر مزید کنسوئیاں لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھریلو مسئلے گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ نکلنے دیے جائیں، اور ویسے بھی وقت گزرنے کے ساتھ عورت کے قدم سسرال کی سرزمین پر مضبوطی سے ٹک جاتے ہیں اور چھوٹے مسئلے مسائل خود بخود دم توڑ دیتے ہیں۔ ہما نے تو ماں کی یہ نصیحت پلو سے باندھ لی تھی۔ اس نے کبھی میکے والوں کے سامنے سسرال کی کوئی برائی نہ کی تھی، لیکن میکے میں کوئی بھی رشتہ دار اسے ملنے سسرال آتا تو اسے چند منٹوں میں ہی سسرال میں ہما کی اوقات کا پتہ چل جاتا۔ اپنا بھرم ٹوٹنے پر ہما کے پاس چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ آج اس کی خالہ زاد بہن تارا آپی چھوٹی بھابھی کو ساتھ لے کر اس سے ملنے اس کے سسرال آئی تھی۔ وہ عرصہ دراز سے بیرون ملک مقیم تھی۔ برسوں بعد پاکستان آئی۔ ان کا قیام ان کے جیٹ کے ہاں تھا۔ سب رشتہ دار ان سے ملنے ان کے پاس پہنچتے رہے۔ جو جاتا انہیں اپنے ہاں آنے کی خصوصی دعوت دے کر جاتا۔ صرف ہما کو ہی تارا آپی کے پاس جانے کی فرصت نہ مل پائی تھی۔ تارا آپی ویسے تو اس کی خالہ زاد بہن تھی، لیکن ہما کو وہ سگی بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ ہما کے بچپن میں تارا آپی نے اس کے بہت لاڈ اٹھائے تھے۔ وہ شادی کے بعد کینیڈا جا بسی تھی۔ برسوں بعد ان کا پاکستان چکر لگتا۔ وہ جب بھی پاکستان آتی ہما سب سے پہلے ان سے ملنے پہنچتی، لیکن یہ اس کی شادی سے پہلے کی بات تھی۔ اس بار تارا آپی کو آئے 20 دن سے زیادہ ہو گئے تھے۔ ہما باوجود خواہش کے ان سے ملنے نہ جا پائی تھی۔ تارا آپی چھوٹی بھابھی کو ساتھ لے کر خود ہی ہما سے ملنے اس کے سسرال پہنچ گئی تھی۔ وہ ہما اور ثاقب کے لیے ڈھیروں تحفے لائی تھی۔ ہما تارا آپی کو اچانک دیکھ کر پہلے تو بے تحاشا خوش ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس خوشی پر بوکھلاہٹ نے غلبہ پا لیا تھا۔ امی جان لاؤنج میں آن نکلی تھی اور ان کی شکل دیکھ کر ہما کے اوسان ویسے ہی خطا ہو جاتے تھے۔ اس نے فوراً ہی تارا آپی سے ساس کا تعارف کرایا تھا۔ کتنی دیر سے اپنے کمرے میں لیٹی تھی، کانوں میں آوازیں تو پڑ رہی تھی۔ بہو کی چہکتی آواز سن کر اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کوئی خاص مہمان ملنے آئے ہیں۔ پہلے تو ہم منتظر رہے کہ کوئی ہم سے ملنے ہمارے بھی کمرے میں جھانکے گا، پھر سوچا کیوں بہو کے معزز مہمانوں کو اپنے کمرے تک آنے کی زحمت دوں، خود ہی سلام کرنے حاضر ہو جاتی ہوں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر امی جان پرتپاک انداز میں تارا آپی سے ملی، لیکن ان کا طنزیہ لہجہ کسی طور پر نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھا۔ ایک لمحے کو تو تارا آپی بھی چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ ہما کی تو ایسے کسی بھی موقع پر خود بخود بولتی ہی بند ہو جاتی تھی۔ آخر بھابھی نے ہی ان سے ان کی طبیعت کے متعلق استفسار کر کے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد نے عاجز کر رکھا ہے بیٹی، لیکن شکر ہے پھر بھی اللہ نے اتنی ہمت دے رکھی ہے کہ اپنے کام خود ہی نپٹا لیتے ہیں۔ کسی کا احسان لینے کی نوبت نہیں آتی۔ سیدھے سے سوال کا پھر ٹیڑھا سا جواب ملا تھا۔ چھوٹی بھابھی خود خاصی تنگ مزاج تھی۔ انہوں نے ہما کی ساس کو مزید لفٹ کرانا مناسب نہ سمجھا۔ چلو اپنے بیڈ روم میں آ کر AC آن کرو، میں تمہارے بیڈ پر 2 گھڑی لیٹ کر کمر سیدھی کر لوں۔ اب تو زیادہ دیر نہ تو کھڑا ہوا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے۔ بھابھی نے ہما کو مخاطب کیا۔ ان کی پریگننسی کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ تارا آپی جانے کیا سوچ کر انہیں ساتھ لے آئی تھی۔ ان کی حیت دیکھ کر ہما کو خود ہی شرم سی آ گئی۔ وہ فوراً انہیں ساتھ لیے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ تارا آپی مروت میں اس کی ساس کے پاس لاؤنج میں ہی بیٹھ کر گپ شپ لگانے لگی تھی۔ شکر ہے ثاقب کسی کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ چھوٹی بھابھی مزے سے پاؤں پسار کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ آپ گھر پر ریسٹ کرتی بھابھی، تارا آپی کے ساتھ کسی اور کو بھیج دیتی، اس نے رسانیت سے انہیں مخاطب کیا۔ گھر پر تمہاری بڑی بھابھی کے میکے والوں نے ہلہ بول رکھا تھا۔ بڑی بھابھی کو میری طبیعت کی کب پرواہ ہوتی ہے، اپنے پورے خاندان کو
ज़हराने पर मद्दू किया, वो तो शुक्र है तारा बाजी आ गई, मैं तो फौरन उनके साथ निकल आई। अब तुम्हारे यहाँ से फारिग होकर आसफा चच्ची के यहाँ जाने का इरादा है, छोटी भाभी ने बताया तो हुमा ने असबात ने सर हिलाया। फिर उन्हें टीवी का रिमोट्स देकर खुद खातिर तवाज़ा का सामान करने किचन में जा घुसी थी। कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स की ट्रे लेकर जब वो वापस बेडरूम में आई तो तारा आपी भी वहीं आ गई थी और अब उसकी सास की तेजी तरारी पर इजहार ख्याल कर रही थी। साकिब अपनी माँ को ऐसी बातों पर नहीं टोकता क्या? बंदा घर आए मेहमान का ही कुछ लिहाज कर लेता है। तुम्हारे बारे में मुस्तकिल तंजिया फिक्रे बोलती रही। मेरे जी में तो आया कि कहूँ कि हमारे खानदान की सबसे भोली भाली बच्ची से भी अगर आपको शिकायत है तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। बड़ी बी फिर ये सोचकर खामोश रही कि मैं तो जरा सी देर में चली जाऊंगी, बाद में तुम्हें उनकी उल्टी सीधी बर्दाश्त करना पड़ेगी। तारा आपी को हुमा की खरांट सांस से मिलकर ठीक ठाक गुस्सा आया था। अम्मी जान दिल की बुरी नहीं है आपी, बस उनकी आदत ही कुछ ऐसी है। हुमा ने खामखा सास की सफाई पेश करने की कोशिश की। दिल में कौन झांक कर देख सकता है चंदा, बंदे की अच्छाई बुराई का जुबान से ही पता चलता है। तारा आपी ने गहरी सांस अंदर खींची थी। हुमा खामोश हो गई। तारा आपी और छोटी भाभी जरा सी देर में वापस चली गई थी। हुमा ने उनसे वादा किया था कि वो बहुत जल्द साकिब के साथ उनसे मिलने आएंगी। साकिब वाकई उसे 2 दिन बाद तारा आपी से मिलवाने ले गया था। बहुत समझदार और साबिर शाकिर बीवी है तुम्हारी साकिब मियाँ, उसकी कदर किया करो, तारा आपी ने साकिब को नसीहत की थी। साकिब ने मुस्कुराकर असबात में सर हिला दिया। वो भला मानस शख्स था, हुमा से मोहब्बत भी करता था और उसका ख्याल रखने की अपनी सी हर मुमकिन कोशिश भी करता था, लेकिन अपनी माँ की हर वक्त तंज करने वाली आदत का उसके पास भी कोई तोड़ ना था। वो बीवी को ही बर्दाश्त की तलकीन करता। हुमा में बर्दाश्त का मादा बहुत था, लेकिन जब किसी दूसरे के सामने इज्जत अफजाई होती तब जब्त करना मुश्किल हो जाता। इस रोज वो दोपहर के काम निपटा कर जरा सस्ताने लेटी तो जल्द ही गहरी नींद ने आन घेरा। रोज की निस्बत खासी देर से आंख खुली। वो बौखला कर कमरे से निकली। अम्मी जान की चाय का वक्त था और उन्हें अपने किसी भी काम में जरा सी भी देर सवेर गवारा नहीं थी। किचन में जाने से पहले लाउंज से गुजर हुआ तो पड़ोस की फातिमा आंटी को उनके पास बैठे देखा। उसने रुककर उन्हें सलाम किया। उठ गई बेटी, आओ जरा 2 घड़ी को यहाँ फातिमा के पास बैठो, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तुम सिर्फ चाय पियोगी या साथ कोई केक बिस्किट भी लाऊं? वो पाँव में स्लीपर डालकर बहू से इस्तफसार कर रही थी। आप बैठे अम्मी, मैं 2 मिनट में चाय बनाकर लाई। हुमा शर्मिंदा होते हुए बोली, अरे हम तो घंटे भर से बैठे ही हुए थे, कब से चाय की तलब हो रही थी। फिर तुम्हारी फातिमा आंटी भी आ गई। उन्हें अकेला बिठा कर किचन में जाती अच्छी लगती क्या? बस इसीलिए तुम्हारी मुंतजिर थी। तुम जा गई हो तो बैठो, खूब सोई थकन तो उतर गई होगी, बाकी गर्मा गर्म चाय पीकर उतर जाएगी। अभी तुम्हें चाय बनाकर पिलाती हूँ, बस 2 मिनट की मोहलत दो। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपने मखसूस तंजिया अंदाज में मुखातिब थी। मैं चाय लाती हूँ अम्मी, आप बैठें। हुमा धीरे से कहकर किचन में चली गई। वो मजे से बैठकर पड़ोसन से गप्पे लगाने लगी थी। मकसद बहू को शर्मिंदा करना था, सो वो मकसद पूरा हो गया था। साकिब की दुल्हन तो बहुत सीधी है ज़ैनब, ये बताओ सरमद के लिए लड़की की तलाश मुकम्मल हो गई क्या? फातिमा बेगम पूछ रही थी। साकिब की दुल्हन इतनी सीधी नहीं है, गुन्नों की पूरी है। मेरे भोले भाले बेटे को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। हालांकि ना शक्ल ना सूरत, मेकअप भी तगड़ा नहीं है। वो तो मेरी मत मारी गई थी जो मैंने अपने हीरे जैसे बेटे की यहाँ किस्मत फोड़ दी। सरमद के लिए लड़की का इंतखाब खुद छान फटक कर करूंगी। 2 ही तो बेटे हैं मेरे, अब बहू के इंतखाब में गलती की गुंजाइश ही कहाँ बचती है। वो नखुवत भरे अंदाज में बोली थी। फातिमा बेगम ने भी हंकारा भरा था और फिर दर्जनों लड़कियां मुस्तरद करने के बाद ज़ैनब बेगम ने छोटी बहू ढूंढ ही ली थी। खूब अमीर कबीर फैमिली थी, लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। खूब धूमधाम से हुमा के देवर की शादी हुई और नाजुक अंदाम शाज़मीन दुल्हन बनकर ससुराल पहुंच गई। ज़ैनब बेगम ने शुरू में नई बहू के खूब चाव चोंचले उठाए, बल्कि ये चोंचले हुमा को ही उठाने पड़े कि अम्मी जान को तो सिर्फ हुक्म देना आता था। फिर शादी के 2 बरस के बाद अल्लाह ने हुमा को खुशखबरी से नवाज दिया। हुमा का रुआ अपने रब का शुक्रगुजार था। साकिब की खुशी का भी कोई ठिकाना ना था। गायनाकोलॉजिस्ट ने हुमा की कमजोरी की वजह से उसे भरपूर डाइट और मुकम्मल रेस्ट की तलकीन की थी। साकिब ने घर आकर डॉक्टर की नसीहतें मिनोअन दोहरा दी थी। हाँ भाई, अनोखा बच्चा पैदा करने चली है बहू बेगम। ज़ैनब बेगम भी खुश तो थी, लेकिन तंजिया फिक्रा बोले बिना ना रह पाई।
बहरहाल उन्होंने छोटी दुल्हन को घर के कामों में हाथ बटाने की हदायत कर दी थी। सच भी यही था कि उन्हें शाज़मीन का हर वक्त कमरा बंद करके आराम करना खलने लगा था। शाज़मीन ने घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू तो कर दिया था, लेकिन वो घरेलू कामकाज में अनाड़ी थी। हुमा से तरीके पूछकर कुकिंग करती, चीज अच्छी पक जाती तो फराख दिली से उसका क्रेडिट सबके सामने हुमा को ही देती। देवरानी के हवाले से हुमा के जहन में जो खदशात थे वो अब दम तोड़ चुके थे। शाज़मीन अच्छे मिजाज की लड़की थी। वो हुमा को जिठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन का दर्जा देती थी। हुमा का भी इस हंसमुख और लाउबाली सी लड़की से बहुत मोहब्बत वाला ताल्लुक इस्तवार हो गया था। शाज़मीन के मिजाज में बहुत बचपना भी था। हुमा उसकी अक्सर बेवकूफियों पर हंस हंस कर दोहरी हो जाती, लेकिन फिर उसे अकल से काम लेने की हदायत भी करती। दोनों देवरानी जिठानी का ताल्लुक देखकर ज़ैनब बेगम बेचैन सी रहती। हुमा पुरानी थी, उन्हें इस पर ज्यादा गुस्सा ना आता। अलबत्ता शाज़मीन के तौर तरीके उनकी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे थे। सरमद तो साकिब से बढ़कर जन मुरीद साबित हो रहा था। ज़ैनब बेगम बीवी से उसका इल्तफात देखकर पहरों कुटती। अब उनकी तोपों का रुख शाज़मीन की जानिब हो गया था, लेकिन शाज़मीन में हुमा जैसी बर्दाश्त ना थी। इस रोज जब शाज़मीन और सरमद शाम को सैर सपाटे के लिए निकल रहे थे, ज़ैनब बेगम को जलाल चढ़ गया। उन्होंने रोज रोज के सैर सपाटों पर बेटे बहू को बेनुकत सुनाई। सरमद तो माँ के पास बैठकर उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता रहा। शाज़मीन वापस अपने कमरे में चली गई। मेरा घुटना पकड़कर क्यों बैठा है, जाकर अपनी बीवी को मना, देखा नहीं कैसे तन फन करती गई है। उन्होंने सरमद को झिड़का, पहले आपको तो मना लूं, फिर बीवी को भी मना लूंगा। मर्द बेचारा तो चक्की के दो पाटों के दरमियान पिसता रहता है। सरमद ने ठंडी सांस भरकर खुद कलामी की। ज़ैनब बेगम बेटे को घूर कर रह गई। रात तक शाज़मीन कमरे से बाहर ना निकली। ज़ैनब बेगम को बहू पर मजीद ताव चढ़ता रहा। सुबह शाज़मीन कमरे से निकली, तब भी उसके चेहरे के जाविये बिगड़े ही हुए थे। कोई बहू भी यूं तेवर दिखा सकती है, ये ज़ैनब बेगम के लिए नया तजुर्बा था। सरमद और साकिब ऑफिस चले गए तो ज़ैनब बेगम ने बहू की तबीयत साफ करने की ठानी। शाज़मीन हनूज मुंह फुलाए अपने हिस्से का काम निपटाती फिर रही थी। जब ज़ैनब बेगम ने उसे आवाज देकर बुलाया, जी अम्मी कोई काम है क्या? उसने लठमार अंदाज में पूछा। मेरी ऐसी मजाल कहाँ कि तुम्हें किसी काम का कहूँ, मैंने तो तुम्हें माफी मांगने के लिए बुलाया है। माफ कर दो भाई, हमने कल तुम्हारी शान में कुछ गुस्ताखी कर दी थी। तुम्हारे चेहरे के जाविये दुरुस्त होने का नाम ही नहीं ले रहे। मान लिया भाई, बहुत बड़ा कसूर सरजद हो गया था मुझसे। आइंदा हमारी तौबा जो तुम्हें किसी बात पर टोका। हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं तुमसे। वो अपने मखसूस तंज़िया अंदाज में बहू से मुखातिब थी। हाथ भी जोड़ दिए। पास बैठी हुमा ने बौखलाकर पहले सास और फिर देवरानी को देखा। उसे पता था कि शाज़मीन अब बुरी तरह सटपटा जाएगी। कैसी नाराजगी, कहाँ की नाराजगी। उसे अपने करदा ना करदा जुर्म की फौरन माफी मांगनी पड़ेगी। सास के जुड़े हाथ खोलते हुए उसे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हद करती हैं आप अम्मी जान, क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं? आप बड़ी हैं, डांट डपट और रोक टोक का इख्तियार रखती हैं। आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हुमा मुंतजिर थी कि शाज़मीन कुछ इस तरह के जुमले बोलेगी, मगर वो बोली तो क्या। मुझे अंदाजा था अम्मी जान कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अब इस बात को जाने दे, बस आइंदा ख्याल कीजिएगा। बहुत बेनियाजी से सास की जानिब फिक्रा उछालकर शाज़मीन किचन में घुस गई। ज़ैनब बेगम की आंखें फटी की फटी रह गई। बेसाख्ता कहके का गला घोंटने का जतन करते हुए हुमा के दांत भींच गए थे और आंखों में पानी जमा होने लगा। इस वक्त तो उसने जैसे तैसे जब्त से काम लिया, मगर अपने कमरे में जाकर दिल खोलकर हंसी थी। बाद में उसने शाज़मीन को समझाया जरूर था, आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। अम्मी बड़ी हैं, तुम्हें उनका अदब लिहाज मलहूज रखना चाहिए था। ऐसी हरकतों से वो तुमसे मजीद बरगिश्ता हो जाएंगी। उसने शाज़मीन को रसानियत से मुखातिब किया। जानती हूँ हुमा भाभी, आइंदा एहतियात करूंगी, लेकिन मैं भी क्या करती। अम्मी जान की तंज़िया बातें अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। अब कुछ दिन तक मैं अपनी जुबान काबू में रखूंगी, तो कम से कम अम्मी जान भी कोई तंज़िया बात कहने से पहले 3 बार तो जरूर सोचेंगी। शाज़मीन मजे से बोली। तब हुमा ने उसे तादेबी अंदाज में घूरना चाहा था, मगर अगले ही पल वो हंस पड़ी थी। शाज़मीन के तर्ज अमल से इख्तलाफ ही सही, मगर जीने का ये अंदाज उसके मन को भा गया था।